very good morning students. Welcome in social science virtual class. Today we will continue chapter 7 of history, that is civilizing native and educating the nation. Civilizing means giving good habits, values, and native means people of the country. Giving good values to the people of the country and the education and the education of the nation. We will discuss all these things. In previous virtual class, we have discussed in the early 18th century till 18th century, they believed in Eastern learning. What they thought about Eastern learning? कि Indian civilization had a glorious past, later it declined, subsequently it declined. So they should rediscover that glorious past, and they encourage the Indian for Eastern learning, to know about themselves, to know about their glorious past. So they thought it would help them to understand the Indians, and also it would make them guardian of Indian heritage and also as well as the masters. So students, what was happened in the early 19th century? British officials and others starting criticizing the Eastern learning, Orientalist learning. What they said? They said Eastern learning is full of errors, unscientific, light-hearted, not serious. So they should not spend time to promote Eastern learning. Western learning is scientific, more practical. So they decide to encourage the Western learning. So an English Education Act 1835 was introduced, then Wood's Dispatch in 1854, which given the outline of education system. इंडिया में स्कूल कैसे होंगे, कॉलेजेस कैसे होंगे, यूनिवर्सिटीज कैसे सेट की जाएंगी, all these was explained in Wood's Dispatch. ये हमने पिछली क्लास में स्टडी किया, पिछली वर्चुअल क्लास में आपको एक्सप्लेन किया. स्टूडेंट, हाउ वर आवर स्कूल बिफोर दी ब्रिटिश? हमारे स्कूल कैसे थे ब्रिटिशर्स से पहले? Students, our education system was very flexible. What was? No fixed fee, no printed books, no separate school building, no benches, no chairs, no textbooks. What was? Oral education was given to the students. No annual examination was there. कोई फीस नहीं ली जाती थी, अलग से बिल्डिंग नहीं थी, चेयर्स नहीं थी. डिफरेंट क्लासेस के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते थे. जैसे आजकल आपने कहीं छोटे छोटे से ट्यूशंस पर भी देखा होगा, डिफरेंट क्लासेस के स्टूडेंट एक साथ बैठकर पढ़ते हैं. देयर वर नो स्पेशल प्रोविजन फॉर स्कूल. Schools were run under the tree or in any other corner of the village. Student, this was the system of education before the British rule. But what was happened then? In 18th century, they focused on only higher education. But what was with of the 19th century company concentrate primarily with higher education. So it allowed the local pathshalas to function without much interference. But after the 1854 company decided to improve the system of vernacular education. जब वुड्स डिस्पैच आया तो उसके बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि जो प्राइमरी स्कूल है वो भी नई एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से चलेंगे. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? स्टूडेंट, सब गवर्नमेंट पंडित वर अपॉइंटेड टू विजिट the 4 to 5 schools, and also gurus were asked to give the periodic report and also take the classes according to the timetable. And what was, students were asked to read the textbooks and annual examination was conducted. तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस होगी कि उन्होंने क्या पढ़ा, क्या याद किया, उसके लिए एग्जाम होगी जिसके बेसिस पर उनकी असेसमेंट की जाएगी. तो
आज भी बहुत सारी बातें हमारी एजुकेशन सिस्टम में उसी तरह की हैं। तो these changes were come under the British rule in our country. So student at that time those school adopted this system. They were supported by the government. जिन्होंने ब्रिटिशर्स की इस रूल रेगुलेशन को माना, उन्हें तो फाइनेंशियल हेल्प भी दी गई, उन्हें प्रमोट भी किया गया, पर दूसरों को ये फाइनेंशियल हेल्प नहीं दी गई। So not only Britishers were thinking about the education system in our country, but many other thinkers in different parts of the country also thinking about the education system in our country. सिर्फ ब्रिटिशर्स ही स्टूडेंट्स नहीं सोच रहे थे कि हमारी कंट्री में कैसी एजुकेशन होनी चाहिए, और भी बहुत सारे थिंकर्स थे जिन्हें लगता था कि हमारी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए, इससे बढ़िया होना चाहिए। तो हम डिस्कस करते हैं वो कौन थे। तो सबसे पहले डिस्कस करें व्हाट महात्मा गांधी जी थॉट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी आर्ग्यूड colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians. It made them see Western civilization as superior and destroyed the pride they had in their own culture. There was a poison in this education. Mahatma Gandhi said it was sinful. It enslaved Indians. क्या कहा कि हम जो अपने कल्चर पर प्राइड फील करते हैं ये खो जाएगा, हम ब्रिटिशर्स को सुपीरियर मानने लगेंगे, हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हम सुपीरियर हैं ये फीलिंग ही चली जाएगी। वी थॉट कि ब्रिटिशर्स आर सुपीरियर एंड इंडियंस आर इनफीरियर। तो गांधी जी क्या चाहते थे, कैसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए स्टूडेंट? महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस recover their sense of dignity and self-respect during the national movement. Gandhi ji also asked the students to leave the schools run by the Britishers. हमें उनकी ये एजुकेशन नहीं चाहिए, हम उन स्कूल्स में पढ़ेंगे जो इंडियंस की हैं, हम ब्रिटिशर्स के स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। स्टूडेंट, महात्मा गांधी strongly felt that Indian language ought to be the medium of teaching. Education in English crippled Indians, distance from their own social surroundings. अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हम अपनी लैंग्वेज से दूर हो जाएंगे और अपने ही कंट्री में फॉरेनर की तरह रहने लगेंगे। So what was it made them stranger on our own country, on their own land. So speaking a foreign tongue, despising the local culture, English education did not know how to relate the masses. तो हम अपनी एजुकेशन को अगर हम सब लोगों के साथ जोड़ना चाहते हैं तो इट शुड बी गिवन इन आवर वर्नाकुलर लैंग्वेज। जो हमारे देश की अपनी भाषाएं हैं उसमें बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे पढ़ पाएंगे, उसे समझ पाएंगे और अपने कल्चर से प्यार करेंगे, उसका रिस्पेक्ट करेंगे। सो एजुकेशन शुड बी गिवन इन आवर ओन लैंग्वेजेस। सो what Gandhi ji also said about the Western education, Mahatma Gandhi said Western education focused on reading and writing rather than oral knowledge. It valued textbooks rather than life experience and practical knowledge. जो वेस्टर्न एजुकेशन है ये बुक्स पर फोकस करती है, ज़्यादा नॉलेज पर इसका फोकस नहीं है, लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है। He argued education ought to develop person's mind and soul. जो एजुकेशन हो उनका माइंड डिवेलप हो, वो और अच्छे से सोच पाए, अच्छे से काम कर पाए, सिर्फ रटे रटाए काम ना कर पाए, उनकी एक थॉट सिस्टम डिवेलप होना चाहिए। हमारी एजुकेशन से लिटरेसी और सिंपल रीडिंग और राइटिंग वी कैन नॉट से इट इज अ एजुकेशन। पीपल हैड टू वर्क with their hand and learn a craft and know how different things are operated.
महात्मा गांधी बिलीव्ड इन लर्निंग बाय डूइंग, हम करके सीखें, इससे हमारा ब्रेन भी डेवलप होगा, क्रिएटिविटी डेवलप होगी. सो दिस वुड डेवलप द माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड. हु सेड ऑल दीज थिंग्स स्टूडेंट्स? महात्मा गांधी. महात्मा गांधी क्या कहते हैं? हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जिससे हमारा माइंड, सोल, स्पिरिट, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए. गांधी जी ने ये लिखा भी, बाय एजुकेशन आई मीन all round growing out of the best in child and man, body, mind and spirit. This is not the end of education, nor even the beginning. It is the only means where man and woman can be educated. जो एजुकेशन है ये ह्यूमन बींग्स की डेवलपमेंट का एक वे है, एक सोर्स है. तो हमें ऐसी एजुकेशन देनी है स्टूडेंट्स को जिससे उनका माइंड डेवलप हो, उनमें क्रिएटिविटी इनकरेज हो. सो स्टूडेंट, ये तो थे गांधी जी, बट व्हाट अबाउट दी एजुकेशन? अब रविंद्रनाथ टैगोर क्या सोचते थे, कैसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए? स्टूडेंट, जब वो छोटे थे उन्हें स्कूल में भेजा जाता था तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था. उन्हें एक रूम में बैठकर पढ़ना अच्छा नहीं लगता था. जब टीचर्स पढ़ा रहे होते थे तो उनका माइंड कहीं इधर उधर घूम रहा था. So all these experience developed his vision of the education system. The experience of his school days in Calcutta shaped the Tagore's ideas of education. On growing up, he wanted to set up a school where the child was happy, free and creative, where child was able to explore and her own thoughts and desire. ऐसी एजुकेशन चाहते थे जहाँ फ्री हो, क्रिएटिविटी हो, अपने आइडियाज को, न्यू थॉट्स को एक्सप्लोर कर पाए. स्टूडेंट, चाइल्डहुड ought to be a time of self learning outside the rigid and restricted discipline of the school system set by the British. So but all these things were taught by the रविंद्रनाथ टैगोर कि बच्चों को नेचुरल इन्वायरमेंट में पढ़ाया जाना चाहिए, वहाँ उन्हें फ्रीडम दी जानी चाहिए, जिससे उनका माइंड डेवलप होगा, क्रिएटिविटी उनकी बढ़ेगी. सो टैगोर वाज द व्यू ऑफ दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी इनकरेज्ड ओनली इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट. सो ही चूज टू सेट अप अ स्कूल 100 kilometers away from Calcutta in a rural setting. He sighed as an abode of peace. उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की कब? 1901 में, जिसे क्या कहा जाता है? abode of peace, कि जहाँ स्वर्ग है, शांति का स्वर्ग, abode of शांति निकेतन, जहाँ शांति निवास करती है, पीस निवास करता है. तो ये उन्होंने बनाया कब? 1901 में. स्टूडेंट, गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ थॉट्स को मिलते भी हैं. वो जगह एक जैसा सोचते हैं, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, नेचुरल इन्वायरमेंट में होनी चाहिए, क्रिएटिविटी डेवलप में होनी चाहिए, पर कहीं कहीं दोनों के थॉट्स में कुछ डिफरेंस भी है. वो डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? गांधी जी वाज critical of Western civilization and its worship to machines and technology. Tagore wanted to combine elements of modern Western civilization with that he saw as the best with Indian tradition. वो क्या चाहते थे रविंद्रनाथ टैगोर की जो वेस्टर्न लर्निंग है उसमें इंडिया लर्निंग का जो बेस्ट है, ईस्टर्न लर्निंग का जो बेस्ट है, उसमें उसको मिक्स करके दोनों को मिलाकर पढ़ाना चाहिए. सो ही एम्फसाइज्ड द नीड टू टीच साइंस, टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन अलोंग विद आर्ट, म्यूजिक एंड डांस. तो वो ये चाहते थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी को भी पढ़ाया जाना चाहिए. किसके साथ? आर्ट, म्यूजिक, डांस के साथ. तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स इस लेसन में? ये पढ़ा सिविलाइजिंग दी नेटिव. ब्रिटिशर्स ने क्या चाहा कि इंडियंस की हैबिट्स को चेंज किया जाए. वो सिविलाइज नहीं है, गुड मैनर्स नहीं है, तो
ने किया स्टूडेंट? तो स्टार्टिंग में 18th सेंचुरी में दे अडॉप्टेड द मेथड ऑफ ईस्टर्न लर्निंग, इट इज आल्सो नोन एज ओरिएंटलिस्ट लर्निंग. So they believe Indian civilization had a glorious past, but it declined. Or they also wanted to discover about Indian civilization. So it would make them guardian of Indian culture, civilization, and they would easily become the master of our country. But what was happened in the early 19th century? James Smith, Macaulay, they criticized the Eastern learning. उन्होंने क्या कहा? Eastern learning is full of errors, unscientific, light-hearted, non-serious. So we should not give education what people wanting, but we should give education what is useful for them, what is practical for them. So they believed in which learning? Western learning. So we discussed what is Western learning. They focused on English education and also science, technology. They focused on these things. स्टूडेंट्स, उनका ये भी पर्पस था, सिविल सर्विस आसानी से मिल जाएंगे, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन करना उनके लिए इजी हो जाएगा. और हमारा स्कूलिंग सिस्टम कैसा था पहले? सिस्टम वाज वेरी फ्लेक्सिबल, एग्जाम नहीं होते थे. जब हार्वेस्ट का टाइम होता था स्कूल क्लोज हो जाते थे और बाद में ओपन होते थे. पर जैसा आजकल हमारा पढ़ाई का सिस्टम है, क्लासरूम, फिक्स सिलेबस, बुक्स, ये सब ब्रिटिशर्स के टाइम में स्टार्ट हुआ और उसको हमने अपने ढंग से ठीक भी किया है. तो स्टूडेंट्स, हमने अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा और साथ पढ़ा कि सिविलाइजेशन, उन्होंने इंडियंस को कैसे सिविलाइज करने की सोची, उसके लिए क्या क्या तरीके उन्होंने अपनाए. तो स्टूडेंट्स, रीड द लेसन एंड डू द गिवन चैप्टर ऑफ मैप एंड एक्टिविटी वर्क.